हाजिर होगा वो, सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोही शादा हीरे अडोनाई हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोही शादा हीरे अडोनाई हाजिर होगा वो। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोही शादा हीरे अडोनाई हाजिर होगा वो। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, गलातियों के अध्याय 3 का 13 में लिखा गया, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. I'll read it again. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. गलातियों की पुस्तक 3 के 13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। And let us declare in Jesus' name that I am not a cursed person. Jesus Christ took all my curses and sin on the cross, and He has redeemed me from the curse of the law. No financial curse is operating upon my life. No family curse is operating upon my life. No curses spoken by any man, any group, any organization is working on my life. I am free from every curses of the law because Jesus has taken it on Him. Bible says, cursed is everyone who is hung on a pole. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। सो इस समय आप भी अपने मुंह को खोलते हुए ये अंगीकार करो कि मैं जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने मेरे हर एक श्राप को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया है और मुझे फ्री कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं, मेरे फिनेंस का हिस्सा नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए चीज़ों का हिस्सा नहीं। कोई श्राप, कोई परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी उस क्रूस पे मेरे हर एक श्रापों को, गुनाहों को ले लिया और मुझे छुड़ा लिया, मुझे स्वतंत्र कर दिया, मुझे नया बना दिया और यीशु में मैं नया बन चुका हूँ। We'll read Romans 8 verse 11.
And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Let me read it again. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of spirit who lives in you. Let us declare, Lord, I am declaring that my spirit is Jesus Christ's spirit, and the same spirit which raised Jesus from dead is living inside of me. I am more powerful, I am anointed and prosperous. The one who is living in me is more anointed and more powerful than the one who is living in the Word. And I am declaring in Jesus' name, anything which is dead in my life is receiving life right now in Jesus' name. Church, declare right now, anything which is dead in my life. If your business are dead, declare. Take the name of your business and declare, my business is receiving resurrection life right now. If any body part is dead, let's say your kidneys are dead or your any organ is your dead in your body, declare, my organ is receiving life right now. If you are having diabetes, declare, my insulin production, my hormone production is getting back to normal and I am receiving life because the resurrection life, the life of resurrected Christ is in me. रोमियो 8:11 में ऐसा लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक और बार पढ़ेंगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को अपने ही आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वचन कहता है कि ये जो आत्मा यीशु को मरे हुए में से उसने जिलाया, वही आत्मा मेरे और आपके अंदर बसा हुआ है, और जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे नश्वर देहों को भी वो जिला सकता है। सो आज कलीसिया अपनी आवाज़ों को उठा के, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अपनी आवाज़ों को उठा के आज अंगीकार करो कि परमेश्वर आपका कोई अंग मरा हुआ है। आज आप डिक्लेयर कर सकते हो, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को उस मुर्दों में से जी उठाया, तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह जी उठा, वचन कहता है वही आत्मा आप में और मेरे अंदर वास करता है। अगर आपका फिनेंस मर चुका है, आप डिक्लेयर कर सकते हो मेरा मरा हुआ फिनेंस को जी उठाएगा। आपके रिश्ते मर चुके हैं, आप इस टाइम अंगीकार करो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो, मेरे मरे हुए रिश्ते आज से जी उठेंगे। आप जो देखना चाहते हैं, जो अंग आपका मरा हुआ है, आप डायबिटिक होंगे, आप इंसुलिन के ऊपर होंगे, आपका शरीर ऑटोमेटिकली आपके लिए उसको क्रिएट नहीं कर रहा, बना नहीं पा रहा, आज आप बोलो कि परमेश्वर आज से मेरा बॉडी मेरे लिए इंसुलिन को बनाना शुरू करेगा, मेरे को बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी किडनियां मर चुकी होंगी, आज डिक्लेयर करो परमेश्वर तू मरे हुए को जिलाएगा। तेरा वचन कहता है जो आत्मा मुझ में है, यीशु में, यीशु का आत्मा मुझ में है, वो मुझे नया जीवन दे सकता है। आपकी मरे हुए किडनियों को आज आप अंगीकार करो, आज आप घोषणा करो मेरी किडनियां जी उठेंगी, मेरा मरा हुआ अंग जी उठेगा, मेरी परिस्थितियां जो मर चुकी है, मेरा फिनेंस जो मर चुका है, परमेश्वर उसको जी उठाएगा और परमेश्वर फिर से उसको जिलाएगा और उठा के खड़ा करेगा। My dear friend, let's read Matthew chapter 16 verse 19. We'll be reading it and you will be meditating on this word. The word of the Lord says, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So let us bind everything, every black magic, every curses, every attack, every demonic diseases, every plan of the wicked one, anything which is released, any attack which is released, any plan which is released, any plan of the enemy which is released, we are binding right now with the word of God, and we are releasing blessings, we are releasing finances, we are releasing provisions, we are releasing authority, we are releasing grace, we are releasing mercies, we are releasing abundance, we are releasing happiness and joy into our spiritual atmosphere and into our spiritual atmosphere. As the word of the Lord says, whatever you bound in heaven will be bound on earth, whatever you bound on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So we are believing and declaring this word of God, and we are releasing this word into our spiritual realms. मत्ती 16:19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वचन कहता है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में भी बन जाएगा, और जो कुछ हम
पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सो इस समय आप अपने मुंह को खोलो, और जो आप पृथ्वी में खोलना चाहते हो, जो बंधन आपके बंध चुके हैं बट आप खोलना चाहते हो, आप अभी इसी टाइम बोलो, परमेश्वर उन बंधनों को तो खोल देगा। जो परेशानियों में आप जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स में आप जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जा रहे हैं, आप आज बोल सकते हैं कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुल जाएंगे। आप फिनेंसेस को आप बोल सकते हैं कि मेरा फिनेंसेस खुल जाएगा। आप डिप्रेशन में है, परेशानी में, आप बोल सकते हैं कि मैं उसको यीशु के नाम से उसको खोलता हूँ, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम इस पृथ्वी में खोलोगे वो उस स्वर्ग में भी खुल जाएगा, और जो कुछ तुम बांधोगे, आज बोलना, परमेश्वर मैं इस धरती पे बांधता हूँ, जो शैतानिक शक्तियों को मैं बांधता हूँ, जो डेविल की योजनाओं को मैं बांधता हूँ, क्योंकि वचन कहता है वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा। Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. I am your son. Declare this. I am your son, and your word is giving me life and health to my body. Declare, my dear friend, today declare in Jesus' name that I am the son of the living God, and the word of the Lord gives me life and health to my body. नीति वचन 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर न होने देना, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उन्हें जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है। वचन कहता है, यहाँ कहा है मेरे बेटे। यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि हम उसके बेटे हैं, और उसके वचन पे ध्यान लगा के हम सुनेंगे। और वचन कहता है जिनको वो प्राप्त करते हैं उनको वो जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे शरीरों को, हमारे अंगों को वो चंगा करता है। हमें जीवित रहने के लिए, हमें चंगा करने के लिए परमेश्वर वो सामर्थ देता है। आज बोलो, परमेश्वर मैं जीवित रहूंगा, मेरा शरीर जो है वो भला और चंगा रहेगा, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, जो डेड सिचुएशन है वो मेरा हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि तू नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। न्यू लाइफ, नया जीवन तू मुझे देगा। मेरे सारे शरीर जो है वो चंगे होंगे, चंगाई मेरे जीवन का हिस्सा होगा, नया जीवन मेरे जीवन का हिस्सा होगा। Exodus 23 verse 25 says, worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from you. Worship the Lord, or serve the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from you. The word of the Lord says, when we worship, when we serve the Lord, his blessing will be on my food and my water. My dear friend, declare today that I am a son of the Most High God. I worship my Lord, I serve my Lord, and the Lord is blessing my food, the Lord is blessing my water, and there is no sickness over my body. As we are meditating, Hebrew word of meditation is ponder. Speak the word of God. As we are speaking this word, your food, your water, anything which you eat and consume will 100% will be blessed, and there will not be any sickness in our life. Declare with me, as I am worshipping, as I am serving my Lord, my food, my water, everything is blessed. There is no sickness in my family, in my life. निर्गमन की पुस्तक 23:25 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से वो रोगों को दूर करेगा। वचन कहता है यदि तो अपने परमेश्वर की उपासना, मेडिटेट करना, मेडिटेट जो हिब्रानियों में मेडिटेट का मतलब है पॉन्डर करना, उसके ऊपर मनन करना। वचन कहता है यदि तो यहोवा के वचन के ऊपर मनन करेगा, उपासना करेगा, उसकी सेवा करेगा, तब परमेश्वर तेरे अन्न और जल पे आशीष देगा। आज बोलो, परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी सेवा करती हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को मानती हूँ, मैं तेरे वचन के ऊपर चलने वाली हूँ, मैं उसके ऊपर ध्यान रखती हूँ, उसकी उपासना करती हूँ। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे अन्न और जल, मैं जो खाऊंगे, मैं जो खाऊंगा, मैं जो खाऊंगी, और मेरे पानी, मेरा जल जो है, जो मैं अपने शरीर के अंदर लूँगा, मैं अपने शरीर के अंदर लूँगी, उसमें तू आशीष को देगा। और वचन कहता है कि वो हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। वो आपके शरीरों में से, आपके परिवारों में से, आपके जुड़े हुए जो चीज़ है उसके अंदर बीच में से वो रोगों को दूर करेगा और आप भले चंगे रहेंगे। परमेश्वर आपके खाने पीने के ऊपर आशीष देगा, हर एक रोगों को परमेश्वर दूर करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। Book of Isaiah
43 verse 4 says, "Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nation in exchange for your life." My dear beloved, the word of the Lord says, you are precious. Declare that I am precious and I am honored and the Lord loves me. Declare that I am precious. I am highly honored. The Lord loves me. I am loved by the Most High God. यशाया 43 के 4 में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य को लोगों को दे दूंगा। इस टाइम आप अपने मुंह को खोल के आज अंगीकार कीजिए कि मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आंखों के सामने मैं अनमोल हूँ, मैं प्रतिष्ठित ठहरा हूँ। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मुझे आदर देता है, मैं अनमोल हूँ, मैं प्रेशियस हूँ उसके आंखों के सामने, और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। परमेश्वर ने मुझे अलग बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप बनाया, मुझे आदर दिया और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ। By his stripes I am healed. Declare today, by his stripes I am healed. Any diseases you have on your skin, on your body, any mental diseases you have, declare, take the name of that disease and say, by his stripes I am healed of this disease. ये वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सो आज आप इस मोमेंट पे डिक्लेयर करेंगे कि परमेश्वर, तूने जो कोड़े खाए और तूने मुझे चंगा किया, कोई बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरा शरीर चंगा है, मेरा हर एक अंग चंगा है, मेरे शरीर के जो आंतड़ियाँ हैं वो चंगे हैं, मेरी हड्डियाँ चंगी हैं, मेरे साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, मेरे अंग, हर एक चीज़ परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया है। Bible says he sent his word and healed my disease. The Lord is sending the word. All this word which I have taken, the Lord has sent the word and healed my diseases. Bible also says that Lord is in his word. The word means the Lord. So as I'm taking the word, the Lord is in those words and he is healing my diseases, he is healing my finances, he is healing my emotions, he is healing my relationships, and I am blessed, I am superbly blessed in every area. और वचन कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और मुझे चंगा किया, उसके वचन के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। आज आप घोषणा करो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ और इसी मोमेंट से, इसी क्षण से मैं चंगा हो चुका हूँ। बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तेरा वचन ने मुझे चंगा कर दिया है। कोई इमोशनल ट्रबल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, उसने वचन को भेजा और मुझे चंगा कर दिया है। Declare this along with me. We'll be doing declaration for a few minutes. I am born of God. Say after me, I am born of God. आप मेरे पीछे पीछे बोलिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है। I am a new creation. Declare and say this after me. This is not a time you are not meditating on your mind. You are meditating with me. Both of us are meditating. We are one in spirit. Declare that I am a new creation in Christ. और इसी टाइम आप मुंह को खोल के अंगीकार करो कि परमेश्वर में मैं एक नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मुझे नया जन्म दिया, परमेश्वर ने मुझे नई सृष्टि दी। ये समय आप हम दोनों के साथ मिलके एक मन हो जाइए और आप भी अपने मुंह को खोलते हुए अंगीकार करो कि परमेश्वर में, यीशु में मैंने एक नया जन्म पा लिया है, मैं न्यू क्रिएशन हूँ यीशु में। I have the seed of God in me. Declare this after me. I have the seed of God in me. आप घोषणा करो कि परमेश्वर का बीज जो है मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। I am anointed. Declare this. I am anointed. I am anointed. मैं परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है और मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। आज आप घोषणा करो कि मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। I am appointed by God. I am appointed by God for doing great and mightier things in my life. I am appointed by God for doing great and mightier things in my life. आज अंगीकार करो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरे को नाम लेके चुना है बड़े कार्य करने के लिए। उसने मुझे चुन के अलग किया है उसके राज्य के लिए, बड़े कार्य करने के लिए। अंगीकार कीजिए आज आप।
I am deeply loved by God and my family. Declare this: I am deeply loved by my God and my family. I have people to love and to be loved. I am loved by many people. My family loves me. My spiritual father and mother loves me. My church loves me. People around me, office, organization, all of them are loving me. I'm deeply loved by God and my family and my people around me. Declare this. और आज आप घोषणा करो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ जो व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़े हुए वो सब मुझसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता और उसी के साथ जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे आत्मिक माता पिता, मेरी कलीसिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, सब लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आज आप घोषणा करो। I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly realms. I am blessed with every spiritual blessings, whatever the blessing which is written, be it finances, spiritual, physical, emotional blessings. I am blessed with every spiritual blessings in heavenly realms. और आज ये घोषणा करो कि परमेश्वर ने उस स्वर्गीय स्थानों में से हर एक आशीषों के साथ मुझे ब्लेस किया है, मुझे आशीष किया है। उस स्वर्गीय स्थानों में से मेरे को हर एक आशीषों को परमेश्वर ने दे दिया है। I am chosen by God to do greater and mightier things. I am not chosen by any man. I am chosen by God to do great and mightier things on this earth. और घोषणा करो कि आज परमेश्वर ने मुझे चुना है, कोई व्यक्ति ने मुझे नहीं चुना, बट परमेश्वर ने मुझे चुना है परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करने के लिए। I am forgiven by the Lord. I am forgiven by the Lord. घोषणा करो कि परमेश्वर ने हर एक पापों में से मुझे माफ कर दिया, मुझे नया कर दिया, मुझे नया व्यक्ति बनाया। मेरे पाप सारे धुल कर माफ हो चुके हैं। आज ये अंगीकार करो। I am redeemed by the Lord. I am redeemed from every curses of the law, from every issues. I am redeemed by the Lord. और घोषणा करो कि मैं छुड़ाया हुआ व्यक्ति हूँ। व्यवस्था, उस कानून के अनुसार, उसकी हर एक आज्ञाओं के अनुसार मैं छुड़ाया गया हूँ। परमेश्वर के वचन ने मुझे छुड़ा दिया हर एक व्यवस्था के उस कानून से। I am a new creation. और मैं एक नई सृष्टि हूँ। Sin has no power over me. Declare this: sin has no power over me. घोषणा करो कि पाप का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। पाप का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। Death has no dominion over me. मृत्यु, death has no dominion over me. और मृत्यु का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। आज घोषणा करो कि मृत्यु मेरे ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता है। I am the house of God. I am the house of God. और मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का घर हूँ, परमेश्वर का भवन हूँ। The same spirit which raised Jesus from dead lives in me. The same spirit which raised Jesus Christ from death lives in me. और वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को उस मुर्दों में से जुलाया, वही आत्मा मेरे ऊपर, मेरे अंदर वास करता है। इसीलिए मेरी मरी हुई परिस्थितियों को भी वो जलाने की सामर्थ रखता है। I have the mind of Christ. मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। I have the supernatural mind of Christ. और मेरे अंदर परमेश्वर के उस अलौकिक, उस स्वर्गीय बुद्धि मेरे अंदर वास करता है। I have the creative mind of Christ. और मेरे अंदर भी वही आत्मा जो नए चीज़ों को सृजन करता है, सृजनहार परमेश्वर की वही आत्मा मेरे अंदर है। इसका मतलब मैं भी चीज़ों को बना सकता हूँ। I have the creative, supernatural, blessed, happy, joyous mind of Jesus Christ in me. और मेरे अंदर परमेश्वर का वो आत्मा उपलब्ध है। वो आत्मा जो चीज़ों को बनाता है, वो आनंद की आत्मा मेरे अंदर है। वो गरीबी की आत्मा नहीं, बट वो अमीरी की आत्मा मेरे अंदर अवेलेबल है। I have the knowledge of Christ. I have the supernatural knowledge of Jesus Christ inside of me. और यीशु का वो ज्ञान का आत्मा मेरे अंदर उपलब्ध है। नॉलेज, जो परमेश्वर का जो ज्ञान का वो जो आत्मा है, वो मेरे अंदर उपलब्ध है। I have the anointing of Christ. Declare, my beloved, that I have the anointing of Christ over me. और यीशु का अभिषेक मेरे ऊपर है। या आप घोषणा करो कि यीशु का जो अभिषेक है वो मेरे ऊपर है। The resurrection life of God is flowing in my body and in my being. वो जी उठने का जो सामर्थ है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो मेरे ऊपर, मेरे अंदर से, मेरे शरीरों से वो बहता है। जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो मेरे शरीरों में से बहता है। आज ये अंगीकार करो। Every dead organ in my body is coming back to life right now.
और आज अंगीकार करो कि हर एक मरा हुआ परिस्थिति जो है वो वापस आने वाला है, उसमें नया जीवन उपलब्ध होने वाला है। Every dead organ in my life, my body is coming back to life right now. और हर एक मरा हुआ चीज जो है वो वापस नए जीवन को पाएगा। आज इसको घोषणा करो कि हर एक मरा हुआ अंग जो है वो नए जीवन को इसी टाइम प्राप्त कर रहा है। My beloved, this time the Holy Spirit is telling me, if you have any relationship with friend and family, any business relationship, any deals or any official relationship which is dead and gone, right now take the name of that person or that deal and command it to come back to life, which is going to be profitable for you. Right now, take a pause, declare it, and it will be a blessed time for you. और इसी टाइम जैसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अगर आपके बीच में आपका कोई रिश्ता मर चुका है, इसी टाइम आप अंगीकार करो जो रिश्ता मर चुका है उसमें नया जीवन आने के लिए इसी वीडियो को आप इसी टाइम पॉज करके आप अंगीकार करो कि मेरा वो रिश्ता जो मर चुका है उसमें नया जन्म आएगा, नई सामर्थ आएगा, नया जीवन उस रिश्ते में आ रहा है, ये घोषणा करो। Congratulations, my beloved, you have completed this time. We are continuing it. And you need to do this again and again every day because the word has got power. Bible says the life and death is in your power. So we are declaring life, Zoe life, the God kind of life, and God is breathing life into every being, every area. And in few days you are going to come with one of the greatest, biggest, largest testimonies you have ever received. I am believing for this. And you are releasing life into your area and into your being. और जैसे वचन कहता है कि हमारे मुंह में जो है वो ताकत है जीवन और मृत्यु का, और जैसे आप इन जीवन की वचनों को, घोषणाओं को करते हैं, आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके फाइनेंस में, आपके रिश्तों में एक नया जीवन आते हुए मैं देख रहा हूँ। और इसको हम कंटिन्यू करें, इस प्रार्थना का ये समय जो है, मेडिटेशन का जो समय है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग घोषणाओं को हम करेंगे। Declare this, I am peaceful, I am joyful, I am powerful. और ये घोषणा करो कि मैं शांति को बनाए रखने वाला हूँ, मैं आनंदित हूँ और मैं एक सामर्थी व्यक्ति हूँ। The same way Father Lord loves Jesus, the same love I am also experiencing through Jesus from my Father God. और जिस प्रकार अब्बा पिता ने यीशु से प्यार किया, उसी प्रकार अब्बा पिता मेरे से भी प्यार करता है। आज ये घोषणा करो। I am seated with Christ in heavenly places. I am seated with Christ in heavenly places. और मैं यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ। आज अंगीकार करो। My heart is healed. मेरा हृदय भला चंगा। My emotions are healed. मेरा सोच विचार, मेरा इमोशन जो है वो चंगा है। My body is healed. मेरा शरीर चंगा है। I am forgiving every person, every group, every relative, family who has done anything towards me. I am releasing everyone from my life and I am free and I am not holding any grudges in my life against any person. और इस टाइम आप घोषणा करो, आप बोलो, मैं सबको माफ करता हूँ जिसने मेरे विरुद्ध में काम किया, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जो भी जिसने भी आपके विरुद्ध काम किया, आपको धोखा दिया, आपका दिलों को दिखाया, आज बोलो परमेश्वर मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं अपने हृदय में कोई भी उनके प्रति कोई क्रोध नहीं रखता, कोई मन मुटाव नहीं रखता। आज आत्मा में उनको फ्री कर दो, आज़ाद कर दो और बोलो परमेश्वर मैं उस इमोशंस में भी से भी मैं फ्री हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ। Declare this, I am a supernatural being. और ये घोषणा करो कि मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूँ। Wherever I go, I release the power of God. और जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, मैं परमेश्वर की उस सामर्थ को मैं उंडेल सकता हूँ। I use my word to build people and not to destroy them. Declare this, I use my word to build people and not to destroy them. और इस टाइम आप घोषणा करो कि मैं लोगों को खड़ा करने के लिए अपना कार्य करूँगा, ना कि मैं उनको खराब करूँगा, ना कि उनको नाश करूँगा। बट आज आप घोषणा करो कि मैं लोगों को बिल्ड करूँगा, उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा, मैं खराब नहीं करूँगा। Declare this, I am a builder and I am an influencer. आज घोषणा करो मैं चीज़ों को निर्माण करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं लोगों के जीवन में एक प्रभाव डालने वाला व्यक्ति हूँ। Now, my family, focus on the indwelling presence inside of you. Just start enjoying the presence of God inside of you. Fellowship with the Holy Spirit. Take deep breath and release. Inhale and exhale.
Do this exercise for 30 seconds. Take the presence of God as you're sitting alone. Just inhale and exhale, and take the inhaling. As you are taking the breath, believe that you are taking the Zoe life of God inside of you, and you are releasing every tension, every trouble, every issues over your life, and enjoy the fellowship with God right now. Jesus said, I will give you my rest. So we are enjoying the rest of Him at this precious moments. यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो यीशु की इस उपस्थिति में आप बोलिए कि यीशु ने मुझे आराम दे चुका है। Every curse over my life is broken. Declare that every curse over my life, my business, my children's life, my wife's life or my husband's life, my family life, my business life is broken in Jesus' name. और अंगीकार करो, यीशु ने बोला कि हर एक श्राप मेरे जीवन से वो टूट चुका है। यीशु ने हर एक श्राप को तोड़ दिया है मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे आत्मा से, मेरे फिनेंस से। हर एक श्राप टूट चुका है, ये अंगीकार करो। I am so precious to God. Declare that I am so precious to God. That's why He purchased me by His own blood and His own body. और अभी अंगीकार करो कि मैं बहुत ही अनमोल हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है और मैं बहुत ही अनमोल हूँ। परमेश्वर ने मुझे अनमोल बनाया है और उसको अंगीकार करो। I'm releasing every tension, every worry and every depression over my life, from my life. और हर एक परेशानियों को, दिमाग के हर एक परेशानियों को, हर एक चिंताओं को, हर एक नकारात्मक चीज़ को मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ। और आज आप समर्पित करो, सब कुछ जाने दो, जो परेशानियाँ हैं, जो चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन, जो ऐसी परिस्थितियों में आप चाहते हैं, आपके अकेलेपन की उस आत्मा को आज परमेश्वर के हाथों में रिलीज, समर्पित कर दीजिए। You are safe. Let Jesus take every tension, every burden you have been carrying for so long. Allow the Lord to take your burden, because Lord says, my yoke is light and He has taken all my burden. He has taken all of our curses on His own body. और इस टाइम अपने बोझों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमारे बोझों को उठा दिया। और परमेश्वर बोलता है, अपने बोझों को मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ जो हल्का है वो अपने ऊपर ले लो। आज इसी टाइम में जो आपका जो बोझ है, जो आप उठा के परेशान हो चुका है, आप उन बोझों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए और आप अपने आप को इस टाइम हल्का महसूस कीजिए। परमेश्वर के उस आनंद को, परमेश्वर की उस शांति को आप अपने ऊपर ले लीजिए। Today, declare that Christ has given me rest in every area. I'm enjoying the life and the rest God has given on my life. और इस टाइम बोलो, परमेश्वर मैं तेरी शांति को अपने जीवन में लेता हूँ और तूने मुझे आनंद दिया, मेरे को शांति दिया। आज घोषणा करो। We are going to declare Romans 10:17 over our life. Consequently, faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. We increase in our faith as we hear the word of God continuously over our life. और जैसे वचन कहता है रोमियो की अध्याय 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो विश्वास है वो सुनने से होता है और मसीह के वचन को सुनने से हमारा विश्वास और मजबूत होता है। I am a man of faith. Using my faith, I will be building and doing greater amazing things in my life, in my family. और आज ये घोषणा करो, अंगीकार करो कि मैं विश्वास का, मेरे अंदर एक विश्वास की आत्मा है, मैं एक विश्वास का मनुष्य हूँ और मैं विश्वास के साथ जो कुछ कहूँगा, बोलूँगा, वो मेरे जीवन में होगा। ये आप अंगीकार करो। Bible says that the prayer of a righteous man avails much and it releases great power. और अंगीकार करो, जैसे वचन कहता है कि जो धर्मी जन की प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जाती हैं, वो बड़े कार्य को करती है। आज बोलो, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को तो सुनेगा और ये रिजल्ट, ये उत्तर को लेके आएगा। I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आज इसको घोषणा करो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। I am the righteousness of God in Christ Jesus. और मैं धर्मी बन चुका हूँ परमेश्वर यीशु के द्वारा। आज ये घोषणा करो। So my prayers are powerful, my declaration are powerful, and they release tremendous power in the spiritual world.
और इसी कारण मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो ताकतवर है, और वो जो आत्मिक जो संसार है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव को लेके आता है, वो सामर्थ्य को लेके आता है, ये अंगीकार करो। Declare that my prayers are powerful, my declarations are powerful, and they are releasing tremendous power in the spiritual world. और घोषणा करो कि जो मेरी प्रार्थनाएं हैं वो ताकतवर है, मेरी घोषणाएं जो है ताकतवर है, और इस संसार में, इस आत्मिक संसार में वो बहुत सारे ताकत को उत्पन्न करता है, ये प्रार्थना करो। So we are going to declare as the Bible words, as the word of the Lord says, whatever you declare, Lord will make it happen. In Isaiah 53 it says, the word which goes out of our mouth, it will never come back empty, it will never come back void, it will always bring results. 53 verse 10 to 11. और उस टाइम आप घोषणा करो जैसे यशायाह की किताब में लिखा है, जो मेरा जो वचन है वो ताकतवर है, और जहाँ कहीं भी मेरा वचन भेजा जाता है वो फलों को लेके आता है, वो रिजल्ट को लेके आता है, वो उत्तरों को लेके आता है। सो जैसे हम इस वचनों को भेजते हैं वो उत्तर को लेके आएगा, वो प्रभाव को लेके आएगा, ये घोषणा करो। Isaiah 53 verse 4 and 5 says, surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, striken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. और यशायाह 53 के 4 और 5 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। My beloved, उसकी कोड़े खाने से, by his stripes you and I are healed. Every sickness is healed, every infirmities are healed, every allergies are healed, every pain is healed, every depression is healed, every emotional problems are healed, every hormonal imbalances are healed, everything is healed by his stripes. और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने जो कोड़े खाए, हमारे शरीर को उसने चंगा किया, हमारे अंगों को चंगा किया, हमारे मानसिक संतुलन को उसने चंगा किया, हमारे फिनेंस को उसने चंगा किया, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक अंग, हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर ने चंगा किया। आज ये घोषणा करो। Isaiah 54 verse 17 we are going to declare, no weapon forged against me will prevail, and I will refute every tongue that accuses me. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. और यशायाह 54:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, हथियार मेरे पढ़ लीजिए, और जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करे उन सबों से मैं जीत पाऊंगा। Every spiritual weapon, physical weapon, weapon used by land, water, earth, spiritual realms, we are destroying them by the word of the Lord. And every accusation people say, spirit says, in secret, in public, and in any way, we are declaring all those accusations false, and we are declaring victory over every accusation and every attack in Jesus' name. और हर एक हथियार जो आत्मिक हथियार है, जो शारीरिक हथियार है, बोलो यीशु के नाम से मैं हर एक हथियार को मैं यीशु के नाम से ख़त्म करता हूँ, नाश करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार, कोई भी हथियार जो इस धरती में मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध बनाया गया, वो पानी के द्वारा हो, वो वायु के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, वो धरती में हो, हर एक ऐसे हथियार आत्मिक या शारीरिक, हर एक हथियार को हम असफल करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक बात जो हमारे खिलाफ बोली गई है, हर एक ऐसी बातें जो हमारे विरुद्ध में कही गई है, हमें गिराने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए, हमें नाश करने के लिए, ऐसे हथियार जो मुंह के द्वारा बोले गए हैं उसको हम ख़त्म करते हैं, नाश करते हैं, उन बातों को ख़त्म करते हैं, उन चीज़ों को जो हमारे विरुद्ध में भेजा गया, बोलों को भेजा गया, बातों को भेजा गया, उसको हम ख़त्म करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। 1 John chapter 4 verse 4 says, you dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. This particular Bible verse is telling us the one who is in us
the Spirit of the living God, Holy Ghost, is greater, more powerful than the spirit which is ruling devilish world, devilish spirit, Luciferian spirit, satanic spirit. The power which is in us is so powerful than all this power operating outside this realm. और पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर का नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता है। आज बोलो परमेश्वर, हम संसार के हैं, बट परमेश्वर हर एक ऐसी संसारिक चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, उन बातों को हम ख़त्म करते हैं, उन चीज़ों को जो हमारे विरुद्ध में उठती हैं उनको हम खंडन करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। Declare this, I am not alone in this world, Christ lives in me. और अभी घोषणा करो कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। I resist the devil and he flees from me right now. I resist the devil and the devil flees from me right now. और इस टाइम आप घोषणा करो कि मैं शैतान के उस हत्यारों के विरुद्ध मैं खड़ा होता हूँ, मैं उसके विरोध में खड़ा होता हूँ। और वचन कहता है जैसे हम उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, वो शैतानिक चीज़ें, शैतानिक बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती हैं। Psalm 118 verse 17 says, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. और भजन संहिता 118:17 में लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। Revelation chapter 12 verse 11 says, Book of Revelation chapter 12 verse 11 says, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। Declare this, I overcome Satan, sickness, tiredness, accusation, fear, any anxiety by the blood of the Lamb. इस टाइम आप घोषणा करो कि मैं यीशु के लहू के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक असामर्थ वाली बातें, हर एक थकावट की आत्मा को, हर एक परेशानी की आत्मा को यीशु के लहू के द्वारा मैं खंडित करता हूँ। And by the word of the testimony. So I am releasing the word of my testimony into heavenly realms. I don't confess negative things. और उस यीशु के वचन की गवाही के वचन के कारण मैं जयवंत हुआ हूँ। सो मेरी गवाही के कारण मैं जयवंत हो चुका हूँ। I don't confess negative things. I don't say negative things. I don't declare negative things. I don't say I don't have, I have lack. I never say I live in abundance and I live in super blessed life. और हर एक नकारात्मक बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। मैं नकारात्मक बातों को नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट ये बोलेंगे कि यीशु में मैं सामर्थी हूँ, यीशु में मेरे अंदर सब कुछ वास करता है। I agree to the word of God and I am declaring every promises written in the word of God is mine and my family's. और मैं अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो कुछ बोला गया है वो मेरे जीवन में वो प्रभाव को लेके आएगा, वो उत्तर को लेके आएगा, ये घोषणा करेंगे। I am releasing my faith and I am releasing my power. I am releasing the authority into spiritual realms. और मैं विश्वास की घोषणा को करता हूँ। मैं इस आत्मिक युग में, मैं इस आत्मिक realm में, मैं उस विश्वास की घोषणा को भेजता हूँ। My dear brother, my dear sister, you are able to continue this meditation till now and we will be entering into new Bible verses and declaration. Keep on this, continue every day, listen to it and you will be enjoying finest blessings and testimony in your life in the days to come. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे इस अंगीकार के इस समय में, इस घोषणाओं के समय में हम जा रहे हैं, आप प्रतिदिन इन घोषणाओं को करें और मेरा विश्वास है कि एक अगले गवाहियों के स्तर में, एक अगले ब्लेसिंग के आशीषों के स्तर में आप पहुंचने वाले हैं। Declare this after me, I am blessed. और इस टाइम आप घोषणा करो, मैं आशीषित हूँ। I am prosperous. और आप घोषणा करो कि मैं समृद्धि पाया हुआ एक व्यक्ति हूँ।
I am blessed and I am prosperous. मैं आशीषित हूँ और मैं समृद्धि पाया हुआ एक व्यक्ति हूँ। I am redeemed. मैं छुड़ाया हुआ व्यक्ति हूँ I am forgiven. और मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। I am talented. मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं और तोड़े हैं I am creative. और मेरे अंदर वो चीजों को सृजन करने की वो सामर्थ है I am confident. और मैं आत्मविश्वासी हूँ। I am secure. मैं सुरक्षित हूँ। I am disciplined. मैं अनुशासन के अधीनता में हूँ I am focused. और मैं केंद्रित होकर चीजों को करता हूँ। I am prepared. मैं तैयार हूँ हर एक कार्यों को करने के लिए I am qualified. और मैं योग्य हूँ कार्यों को करने के लिए। I am motivated. मैं कोई भी कार्य करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं प्रेरित रहता हूँ I am valuable. और मैं बहुत ही कीमती हूँ I am free from every addictions. और मैं हर एक अश्लील चीजों से, हर एक ऐसे चीजों से मैं आजाद हो चुका हूँ I am determined. और मैं कुछ भी कार्य करने के लिए मैं दृढ़ रहता हूँ, मैं निश्चित रहता हूँ उस कार्य को I करने am के लिए equipped. I am equipped. और मैं चीजों को करने के लिए तैयार रहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ दी है वो कार्य को पूरा करने के लिए। I am empowered. परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है, शक्ति दी है। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am accepted. लोग मुझे ग्रहण करते हैं And I am approved. और मैं चुना हुआ हूँ और लोग मेरे को अनुमति देते हैं चीजों को करने की। I am not average. I am not mediocre. I am the child of the Most High God. और मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई भी काम करने से नीचे वो वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बट मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूँ। आज अंगीकार करो। I will become all I was created to be in Jesus' name. और आज अंगीकार करो कि मैं सब कुछ जो परमेश्वर ने मुझे बनाने के लिए, जो चीज़ों को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे रचा है, मैं वो सारा कार्य पूरी रीति से करूँगा। Beloved, declare that I am blessed, prosperous, I am redeemed, I am forgiven, I am talented, I am creative, I am confident, I am secure, I am disciplined, I am focused, I am qualified, I am motivated, I am prepared, I am valuable, I am free, I am determined, I am equipped, I am empowered, I am anointed, I am accepted and I am approved. Declare this. और मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, आज ये घोषणा करो कि मैं आशीषित हूँ, मैं धनवान हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के द्वारा छुड़ाया गया, मेरे पापों को धोकर मेरे को शुद्ध कर दिया, मेरे को बहुत सारे तोड़े दिए। मैं चीज़ों को सृजने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर वो सामर्थ है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अनुशासन के ऊपर चलने वाला हूँ, मैं चीज़ों को एक मन होकर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तैयार रहता हूँ कार्यों को करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं बहुत ही अनमोल हूँ, मैं छुड़ाया गया व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत सारे गुण दिए हैं उन कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है मेरे द्वारा हो। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मेरे को अलग किया है और लोग मेरे से प्रेम करते हैं। लोग मेरे खिलाफ नहीं, मेरे विरुद्ध नहीं, पर मेरे लिए बोलते हैं। मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं परमेश्वर यीशु मसीह का चुना हुआ वंश हूँ और परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। We'll be declaring Colossians chapter 1:13, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Declare that Lord Jesus has saved me from every darkness and Lord has brought me into the light of kingdom of the Son which he loves. कोलोसी की किताब 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आज अंगीकार करो कि परमेश्वर ने हर एक अंधकार का जो गढ़ है या वश है, उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है और अपने पुत्र के राज्य में, उसकी उस प्रेजेंस में हमें प्रवेश करवाया है। आज ये घोषणा करो। Luke chapter 10 verse 19 will be declaring over our life, The Lord has given me the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm me. Nothing will harm me. My beloved, today declare, I am Harish. I am declaring, you take your name and declare, the Lord has given me the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome every power and every game of the enemy. Nothing, no plan, no enemy, no forces, nothing will harm me.
और लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आज अपने मुंह को खोलो और बोलो कि मैं, जो आपका नाम है उसको बोलते हुए अंगीकार करो कि मैं रति, परमेश्वर ने मुझे हर एक सांप और बिच्छुएं, हर एक शैतानिक जो बातें हैं और जो विरोध में उठती हैं, जो हमें खंडन करती है, मैं अपने पैरों तले उसको कुचलता हूँ। शत्रु के हर एक सारी सामर्थ पर मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है और उस शत्रु की योजनाओं में से मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। ये अंगीकार करो। Book of Romans chapter 8 verse 11. And the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in me. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in me. Jesus Christ, the spirit of the living God, lives in me, and the power of resurrection works in my life, in my business, in my ministry, in my shop, in my family's life. Every area, the power of resurrection is working in my life. और रोमियो 8:11 में जो वचन लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो यीशु ने जो आत्मा है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा हमारे अंदर उपलब्ध है, हमारे अंदर बसा हुआ है। और घोषणा करो कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया, उसके नश्वर देहों को फिर से खड़ा किया, वही आत्मा जो मेरे अंदर वास है, मेरे साथ जुड़े हुए हर एक नश्वर चीजों को वो नई आत्मा उसके अंदर उंडेलेगा और मरी हुई चीजें जी उठेंगी। उसको घोषणा करो। Galatians 3 verse 13 we are declaring, Christ redeemed me from the curse of the law by becoming a curse for me, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. I am not cursed, I am not sick, I am not poor, because Jesus Christ has become the curse for me. और गलातियों के पुस्तक 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इस टाइम आप घोषणा करो कि मैं श्रापित व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ पर मैं अमीर हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ परंतु मैं चंगा हूँ, क्योंकि हर एक श्रापों को, हर एक बीमारियों को, हर एक कर्जों को, हर एक गुनाहों को यीशु मसीह ने उस काट के ऊपर अपने ऊपर ले लिया है और मुझे आज़ाद कर दिया हर एक बीमारियों में से, हर एक श्रापों में से, हर एक कर्जों में से, हर एक गुनाहों में से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया और मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। I am blessed, I am healed, and I am living an abundant life. आज घोषणा करो कि मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा व्यक्ति हूँ और परमेश्वर ने मेरे को बहुत आयत का जीवन दिया। आज घोषणा करो। We'll be reading one more Bible verse and we'll be closing today's meditation and prayer. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him, Amen is spoken by us to the glory of God. Every promises which God has given you, all of them are yes and Amen through the glory of God. Believe this, my beloved. और आखिरी ये वचन पढ़ के जो आज हम मनन कर रहे हैं वचनों के द्वारा, उसको हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। So my beloved, we are believing with you that every promises God has given is going to be yes and amen. Continue, listen to this every day, whenever you want to declare, when your personal time, meditate with us, declare with us, speak the life of word of life with us in Jesus name. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर में हर एक प्रार्थनाएं वो हाँ और आमीन के साथ उसका उत्तर दिया जाता है। तो आज ये जो घोषणाएं आपने की है और प्रतिदिन ये जो घोषणाएं आप करते जाएंगे, उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ ही रहेगा। हमारा विश्वास है कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए। यदि यह सेवकाई आपके लिए एक आशीष का कारण बना है, तो आप भी एक विश्वास का कदम उठाए और अपने उत्तम बीजों को इन नंबरों पर बोए। परमेश्वर आपको आशीष दे।